So, hello everyone, and in the previous class, we have discussed about outlier detection via box plot, via quartile quantile technique. We have also discussed about skewness and kurtosis in the distribution of data. ये पढ़ा हमने, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था, मजा आया. Okay. Next, what we have to study is the frequency distribution and the visualization. ये एक टॉपिक है, ठीक. एंड what does it mean is frequency जो होता है it's a measure of occurrence of an event in a data set, ठीक. That means how many times a item is occurring in a data, that is called as a frequency, and that's what we have seen, है ना. जब हम मोड कैलकुलेट करने की बात करते हैं, when we do, okay, तो the item or the element which occurred multiple times, highest जिसका होता है, ठीक है, that is said to be the mode of the data. तो frequency क्या होती है? Number of times. It's a measure of occurrence of an event. It's a measure of occurrence of an item in a data. Okay, जैसे कि I am having one, 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 two, two, three, 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 three. So the frequency of one is three because it appeared three times. The frequency of two is two, and the frequency of three is four. This is what the frequency is. तो हमारे पास ये in the data science and in statistics ना frequency is important. The next one is measures of dispersion. That means it indicates how spread the data is. Measures of dispersion. तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा का डिस्पर्जन हम इनसे बताते हैं. Okay, it comprises of range, variance, standard deviation. Very important terminologies. और ये बार बार आएंगी. Okay, these terminologies will appear multiple times. Okay, fine. तो भाई बात यह है रेंज. What does it mean? So range is, you can say here, the range is the interval of maximum and minimum values. जैसे कि this is the data 12, 14, 20, 40, 99, 100. So the range is 100 minus 12, 88. तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, इनके बीच में मेरी वैल्यूज लाई करती हैं. माई वैल्यूज लाइज बिटवीन दिस रेंज ऑफ वैल्यूज. सो हाउ टू फाइंड इट? Write the difference between max and the min. Then the next comes variance. Everyone should know what a variance is. ये भी डिस्पर्जन का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. वेरियंस इज अ डिफरेंस बिटवीन ईच वैल्यू ऑफ द डेटा फ्रॉम द मीन. And I have already explained this thing previously also. Difference of a value and the mean is called as your variance. Okay, तो भाई you are available with a data. Let us suppose this is your data set. Okay, and you are having a feature x here. These are the values which are present in the feature x. You will calculate the mean of all the values which are present here. Okay, then subtract the mean from each and every value. That is called as a variance. So if you make a variance column, VAR, the difference you are going to write it here. That is called as a variance. So difference between each value of the data set from the mean, or we can say variance measure how far a data point is from its mean. वो पॉइंट अपने मीन से कितनी दूरी पर है, ये होता है वेरिएंस. ओके, 10 फ्रॉम एवरी अदर नंबर इन. अब ये क्यों क्यों ऐसा आपने करा सर? एक्चुअली क्या है, ओके, लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन एंड टॉक यू अबाउट दिस क्राइटेरिया. क्या है कि वेरिएंस में आई टोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा.
ओके, सो यदि मुझे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस बिटवीन data points. That will tell me the distribution of the data. But if the data points are more, calculating distance of each and every data point will be a tough task. ये complicated हो जाएगा. For example, this is the distribution. ये data points हैं. अब हर एक के बीच में तुम दूरी निकालने के लिए बैठे हो, यानी इसकी दूरी इसके साथ, इसकी दूरी इसके साथ, इसी की दूरी इसके साथ, तो हर एक के बीच में हर एक की दूरी निकालना. डिस्टेंस बिटवीन ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट अमंग देमसेल्व्स, अमंग ईच अदर. ओके, ये बोलना चाह रहे हैं. ये कॉम्प्लिकेटेड है. तो उन्होंने एक सोल्यूशन दिया और ये कहा कि एक काम करो, आपस में मत निकालो. यू कंसिडर अ पॉइंट जो कि मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा, इसको तुम बोल दो कि ये मीन है, ये दिस इज द मीन पॉइंट. इसको कंसिडर करो और जितने भी डेटा पॉइंट्स है ना, उनकी दूरी मीन से निकालो, आपस में से मत निकालो, वरना फंस जाओगे. इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड टास्क. So calculate the distance of data points from the mean. That's what you have to do. Okay. इसलिए ये वेरिएंस का फंडा आया और उसने बोला कि x माइनस एक्स बार, ओके, दैट मीन्स वैल्यू माइनस मीन. ये करते हैं हम. ऑल राइट, ठीक है, ये करते हैं हम. ये वेरिएंस है, तभी मीन निकाल के काम चल रहा है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आप ये देख रहे हैं वेरिएंस. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सैंपल वेरिएंस. ओके, ऐसा लिखते हैं अपन, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाय, इट इज सेइंग, is it is saying you that the result is n minus 1 divided by n minus 1. That is your sample variance. You know there are two terms. One is the population and one is the sample. So population में से एक सबसेट निकालना, वो सैंपल कहलाता है. तो ये सैंपल का वेरिएंस है. Where x bar is the mean of sample, x are the data points which are present in the sample. You are calculating the difference between them. You are going to square them. You are going to square the difference. Okay, that's what you have to do. And then you have to take the summation of all the all जो भी result मिला उसका summation करो और उसको n minus 1. N is the number of data points present in the sample. तो उसमें से एक कम, one less than that. This is the variance of a sample. पॉपुलेशन का वेरिएंस अलग होता है, वो बता रहा हूं अभी. दिस इज वेरिएंस ऑफ अ सैंपल, एंड द वेरिएंस ऑफ अ पॉपुलेशन is given as x minus nu. Nu is the mean of population. ये पॉपुलेशन का मीन है जिसमें सारे डेटा पॉइंट्स आ गए. अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम. ये इसका स्क्वायर करो, इसका समीशन करो, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन. कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट इन पॉपुलेशन. ठीक है, तो ये आपका पॉपुलेशन है. ठीक, ये पॉपुलेशन है, इसमें ऑल द पॉइंट्स आर प्रेजेंट. आपने इतना सा सैंपल उठाया वहां से. लेट अस सपोज इट इज हैविंग एन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, क्योंकि पूरे में तो कैपिटल एन है, उसमें स्मॉल एन. सो दिस इज द सैंपल वेरिएंस. भूलना नहीं है कभी. ओके, नाउ यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज वेरिएंस. बच्चे इसी में कंफ्यूज, वेरिएंस क्या होता है. ठीक, और वेरिएंस के भाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन. द ब्रदर ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो वेरिएंस का मतलब भी वेरी करना, डिफरेंस, और डेविएशन का मतलब भी डिफरेंस, डेविएट करना. तो डेविएशन किसका किससे? मीन का, मतलब हाउ फार अ पॉइंट फ्रॉम इट्स मीन, दिस इज कॉल्ड एज डेविएशन. मीन को अपन ने रेफरेंस लिया ना, उसी से तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं. सो हाउ फार अ पॉइंट इज फ्रॉम द मीन, दैट इज कॉल्ड एज डेविएशन. तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. ऐसे निकालते हैं. सो रिमेंबर this is sample variance, this is population variance, and this is the standard deviation.
दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस. ओके, याद रखिएगा. ओके, ये आ गया. ये पॉपुलेशन वेरियंस है. एंड दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस. ओके, तो ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है. ओके, ऐसा है. फाइन. देन कोवेरियंस एंड कोरिलेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज कोवेरियंस एंड कोरिलेशन? कोवेरियंस, तो ये कोवेरियंस तो आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एल्गोरिदम पढ़ा है ना, पीसीए. इन दैट ओनली ना आई टोल्ड कोवेरियंस. हाउ a variable is varying with respect to another variable is said to be covariance. तो वेरिएंस तो पढ़ ही लिया अभी आपने ऊपर. अब कोवेरियंस है. Co means I need to consider two variables at least. So let us consider two numerical variables. And covariance is a way to compare the variance of two variables. यानी I am having feature 1, इसका variance, and I am having feature 2, इसका variance. How they are behaving among each other. That is called as covariance. और ये फॉर्मूला और ये आपने देखा भी है. x minus x bar, that is the variance of x. y minus y bar is the variance of y. दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए. दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए एंड समीशन लेना, यानी फॉर ऑल द डेटा पॉइंट्स यू हैव टू डू द सेम थिंग डिवाइडेड बाय n. ये करना है आपको, वेयर n इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. ये हो गया कोवेरियंस. और ये कर चुके हैं अपन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में. वहां याद करो, एक छोटा सा डेटा, वी डिड कंसीडर अ स्मॉल डेटा सेट वेयर आई एम अवेलेबल विद द सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, वो मैथ्स और साइंस, और उनके स्कोर आए थे. याद आ गया होगा आपको. ठीक है, वहां भी ये पूरा कोवेरियंस निकाला है पीसी के केस में. ठीक, तो ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है. नेक्स्ट आई एम हैविंग कोरिलेशन, that is Pearson correlation. That's what I'm considering here. Okay, Pearson correlation. Fine. Okay, तो भाई ये क्या कहना चाह रहा है Pearson correlation? It is finding the linear relationship between two variables. Pearson correlation. Correlation. अभी correlation, सर covariance तो समझ गए. That means how the distribution of one variable with respect to the another variable. Correlation, and you are talking linear relationship. ये क्या लफड़ा है? What is it? ठीक, तो भाई बात ये है, I am having, again let us suppose this is my data. Okay, this is my data set. Okay, I am having feature x1 and I am having feature x2. Two features I am present in the data. I am talking about correlation. Correlation means if x1 is increasing, kindly check x2 is also increasing. हो सकता है, या x1 is increasing, x2 is decreasing. ऐसा भी हो सकता है. मतलब in the first case it is directly proportional. In the second case it is inversely proportional. 1 upon, it is inversely proportional. एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, और यहां पर ये दोनों बढ़ रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है x1 is decreasing, x2 is decreasing. अभी भी ये लीनियर प्रोपोर्शनल है. लीनियर मतलब x1 is reducing, so x2 is also reducing. That means again directly proportional है. And it may happen x1 is decreasing, x2 is increasing. ये inversely proportional है. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों फीचरों के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि x1 इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, x2 को कोई लेना देना नहीं. दैट मीन्स x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. भाई मेरे को क्या लेना देना तुमसे? अच्छा, चाहता मैं क्या हूं? ये
दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट, कि फीचर इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे के, एक दूसरे को से इन्फ्लुएंस ना हो। यदि वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो गए और मैंने मॉडल में ये वाला डेटा फिट कर दिया, तो इट विल लीड टू द ओवरफिटिंग। ये मैं नहीं चाहता। ओके, सो आई एम करंटली टॉकिंग अबाउट कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में हमने ये देखा कि इस तरीके से हो सकता है, लीनियर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा कि जो कोरिलेशन है, इट लाइज बिटवीन -1 to +1। इसकी जो वैल्यू है कोरिलेशन की, -1 से +1 के बीच में होती है। 0 का मतलब नो कोरिलेशन। 0 से 1 की तरफ जाओगे, दैट मीन्स यदि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और x घट रहा है तो y भी घट रहा है, यानी डायरेक्टली। यदि -1 की तरफ आओगे तो ये इनवर्स कोरिलेशन हो जाएगा, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ओके, दैट्स एन इनवर्स कोरिलेशन, 0 पर कुछ नहीं। ओके, दिस इज द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन। ऑल राइट, तो भाई पियर्सन कोरिलेशन के बारे में वो कह रहा था, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पियर्सन कोरिलेशन एंड इट इज डिफाइंड एज covariance of x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y. This is the formula for Pearson correlation. Correlation तो कई टाइप के होते हैं, ठीक है। वी आर राइट नाउ कंसिडरिंग द पियर्सन कोरिलेशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पियर्सन कोरिलेशन। Okay, 1 upon n summation of x minus x bar y minus y bar. So this is the covariance. We have already studied about that. This is the covariance. I need to divide this covariance with respect to the standard deviation of both x का भी y का भी standard deviation से divide करना है, and this is the formula. Okay, ठीक। और कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन आवर कोड, इन आवर प्रोजेक्ट। वी हैव टू इम्प्लीमेंट कोरिलेशन। और देखो बोल भी रही है -1 to +1। -1 का मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं, -1 इज शोइंग नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि इनवर्स। जैसे कि क्या होगा, व्हेन आई एम गोइंग टू टैबुलेट, यानी मैं टेबल बनाऊंगा फीचर्स की आपस में कोरिलेशन की, ऐसा ऐसा टेबल बनेगा। ओके, दिस इज फीचर F1, F2, F3, F4। ठीक, दिस इज फीचर F1, F2, F3, F4। ठीक है, इसी को ही मैं आगे चल के हीट मैप बोलता हूं। हीट मैप, वो आई विल टेल अहेड, ये प्लॉट बनता है एक। ठीक, तो आई एम राइट नाउ फोकसिंग अपॉन कोरिलेशन, कि फीचर F1 का F2 के साथ क्या रिश्ता है। क्या F1 के बढ़ने पर F2 बढ़ रहा है या घट रहा है, या उसको कोई लेना देने नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू इज कमिंग 0.9, इससे क्या समझ में आएगा, what we are understanding, if F1 and F2 the correlation value is 0.9, what does it mean? What does it mean? सुनाई दे रहा है आपको? ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। और क्या, what we are understanding from this, it's a positive correlation। और क्या समझ में आ रहा है इससे, कि F1 यदि बढ़ा रहे हो तो F2 भी बढ़ रहा है, F2 इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये समझ रहे हैं, यानी आप F1 को इंक्रीज कर रहे हो तो 90% F2 भी बढ़ रहा है। ये आया ना कोरिलेशन का वैल्यू 0.9। ओके, फाइन। मुझे रिस्पॉन्स दे दीजिए करिए बीच बीच में यदि मैं कुछ पूछ रहा हूं तो। अच्छा, अब लेट अस कंसिडर F3। ये एक फीचर है, F3 का F4 के साथ
0.8 ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? -0.8 का. What kind of correlation F3 and F4 are having? माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव मीन्स यदि F3 बढ़ रहा है तो F4 घट रहा है. नेगेटिव का सिर्फ इतना मीनिंग होता है, उसका मतलब माइनस नहीं है वो. नेगेटिव मीन्स वन इज इंक्रीजिंग अनदर इज डिक्रीजिंग, ये मतलब है उसका. ठीक है. यदि ऐसा आ गया 0.0001, इससे पता चल रहा है कि F3 और F2 के बीच में बहुत ही कम, वेरी वेरी लेस कोरिलेशन है. इससे यह पता चल रहा है और कि F2 का F3 के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, बहुत ही कम सा है जो कि मैं इग्नोर कर सकता हूं. दैट्स व्हाट इट मीन्स. और कोरिलेशन निकालोगे कैसे भाई? वो तो फॉर्मूला बता दिया ना मैंने. ये दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन द टू फीचर्स. तो इसी के करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू है जो मैंने फिल करी उस टेबल में. 0.9, 0.8, 0.001, all these I'm filling corresponding to these only. Very important concept for correlation, because those features which are highly correlated, I'm going to drop them. उनको मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि वो ओवरफिटिंग करेंगे मॉडल का. इफ द पॉइंट्स आर, यदि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोरिलेशन, कोलिनियरिटी शो करेंगे वो. कोलिनियरिटी यानी पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाएंगे, ऐसी संभावना हो सकती है. तो माई मॉडल इंस्टेड ऑफ लर्निंग वो सिर्फ पैटर्न मैचिंग करेगा, सीखेगा नहीं वो. एंड आई वॉन्ट माई मॉडल टू लर्न. सिखाना चाहता हूं उसे, रटवाना नहीं चाहता उसे. ठीक है. फाइन. तो कोरिलेशन वाला लफड़ा जो है हमें सॉल्व करना पड़ेगा. सो +1 इज पॉजिटिव, -1 इज नेगेटिव कोरिलेशन. सो पियर्सन कोरिलेशन जो है हम कंसिडर कर रहे थे, एंड दिस सिग्मा एक्स वाई, दिस इज पियर्सन कोएफिशिएंट. ओके, या हम सिंपल कोरिलेशन ही बोलते हैं. ये लीनियर रिलेशनशिप मेजर करता है टू वेरिएबल्स के बीच, एंड इट क्वांटिफाइज द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप. तो प्लस और माइनस से डायरेक्शन ही निकल रही है. ओके, तो आपने आर बोला, इट इज री, चाहे सिग्मा यहां पर ऊपर सिग्मा था कुछ ऐसा, रो सिग्मा नहीं रो था. You can take R also as a symbol for Pearson correlation. It can take a value between -1 to +1. R जो थी डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है बिटवीन द वेरिएबल्स. सो एसोसिएशन ही तो निकाल रहे हैं. यदि R की वैल्यू +1 है, if R is +1, closer to +1, so there is a strong correlation, strong positive correlation between the features. और यदि -1 है तो strong negative correlation between the features. ओके. यानी कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है, डिक्रीज. और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव में क्या बोला था? इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग अनदर वेरिएबल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन. जीरो का मतलब कुछ नहीं. जीरो मीन्स देर इज अ वीक और नो कोरिलेशन बिटवीन द फीचर्स, एंड देर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. ये होता है इसका मीनिंग. ठीक है. ऑल राइट. तो भाई आप एक्स एंड वाई के बीच में को, ये तो वही फॉर्मूला है जो ऊपर बता दिया, पियर्सन कोरिलेशन वाला. ठीक, इट्स द सेम. ऑल राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बात कर ली हमने. नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड. यहाँ और भी डेफिनेशन दी है. पियर्सन कोरिलेशन क्या होता है, एग्जाम्पल बताइए. सो पियर्सन कोरिलेशन आर से डिनोट होता है, स्टैटिस्टिकल मेट्रिक है टू मेजर द स्ट्रेंथ बिटवीन द फीचर्स. लीनियर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहा है. -1 to +1 के बीच में वैल्यू होती है. आई डिड टोल्ड यू, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया. ओके, द फॉर्मूला ऑल्सो आई एक्सप्लेन. फाइन. एम ऑडिबल?
Yes, sir. ठीक है, फाइन, तो ये भी आपको बता दिया। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कंसिडर अ सिनेरियो वेयर वी एम टू प्रिडिक्ट कार प्राइजेस based upon the attributes such as car length, curb weight, horsepower. Okay, so the Pearson correlation is to find a relationship between the variables and the car price. ठीक है, यदि मुझे कार प्राइस प्रिडिक्ट करना है तो मान के चलो डेटा सेट कैसा है मालूम है, ऐसा कुछ डेटा सेट है। दिस इज द डेटा सेट कि टारगेट में मेरे पास कार का प्राइस है और यहां पर मुझे कार का कलर दे दिया मान लो। ठीक है, कार का कलर हो गया, उसका कैपेसिटी दे दिया। ओके, दैट मीन्स विद कितने लीटर में जो है वो कितने किलोमीटर चलेगा, तो कैपेसिटी भी दे दिया। इंजन का कैपेसिटी भी दे दिया यहाँ पर, लेट अस सपोज कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा है। तो द यहाँ क्या करना है मुझे, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ये निकालना है। सो आइदर आई कैन फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन x1 x2 x1 x3 x1 एंड y, मतलब सबके बीच में आपस में रिलेशनशिप भाई मैं निकालूंगा, कोरिलेशन में निकालूंगा। और यदि +1 -1 आई विल चेक कि भाई क्या आ रहा है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या, कि फीचर और टारगेट के बीच में अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, इन दोनों के आपस में ना हो तो चलेगा और अच्छी बात है ना हो, हाँ, लेकिन फीचर और टारगेट के बीच में तो अच्छी होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, क्योंकि यदि होगी अच्छी रिलेशनशिप फीचर और टारगेट की, तो मुझे मेरा मॉडल जो है इट विल गिव मी द बेटर रिजल्ट्स। ओके, और आपस में नहीं होनी चाहिए इनके, एल्स वो ओवर फिटिंग पे जाएगा। ठीक, तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारे बातें बिल्कुल ध्यान रखें, आपके काम आएगी, यही लगाना है। विजुअलाइजेशन से कैसे पता चलेगा मुझे ये बातें, लेट अस सपोज दिस इज माय फीचर f1, this is my feature f2, if the distribution of the data points are coming like this, पहला वाला ग्राफ देखिए फर्स्ट, then it is a positive correlation between the features, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन। इन द सेकेंड डायग्राम यहां से भी आपको पता चल जाएगा ये नेगेटिव कोरिलेशन। कैसे पता चला, क्योंकि एक यदि बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल f2 इज इंक्रीजिंग, तो f1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, घट रही है, यानी ये नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वाला देखो आप, f1 एंड f2, यहां तो सीधे डॉट 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 आ रहे हैं, दैट मीन्स नो कोरिलेशन। तो क्या होता है, हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, वहीं पर ही हमें पकड़ में आ जाता है कि कौन से फीचर कौन से रिलेशन में है, विच फीचर्स आर कोरिलेटेड। सो वी आर गोइंग टू मेक स्कैटर प्लॉट्स, ये सब स्कैटर प्लॉट है, दीज ऑल आर स्कैटर प्लॉट्स, है ना, जहां पर मैं ये पॉइंट्स ऐसे प्लॉट करता हूं तो इनको स्कैटर प्लॉट बोलते हैं। तो स्कैटर प्लॉट विल हेल्प अस इन परफॉर्मिंग बाइवेरिएट एनालिसिस। ये बाइवेरिएट एनालिसिस करा है मैंने, बाइवेरिएट यानी दो वेरिएबल के आपस में प्लॉट बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज बाइवेरिएट। सो स्कैटर प्लॉट से ये पता चल जाएगा कोरिलेशन है या नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल तो आपको पता ही है, और कोरिलेशन बताने के लिए मैंने हीट मैप भी बनाया था, वो भी हेल्प करेगा मेरे को। ठीक है, ऑल दीज आर गोइंग टू हेल्प मी इन फाइंडिंग ऑन इन आइडेंटिफाइंग द कोरिलेशन बिटवीन द फीचर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजम्पशन क्या है पियर्सन कोरिलेशन के, मतलब आपको दो फीचरों के बीच में रिलेशन निकालना है तो कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। पहले, फॉर मीनिंगफुल स्टेटिस्टिकल इन्फरेंसेस डेटा शुड बी फ्रॉम रैंडम और रिस्पेक्टिव सैंपल, बोथ वेरिएबल्स मस्ट बी कंटिन्यूस एंड एडर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आपको दो फीचरों के बीच में यदि कोरिलेशन निकालना हो तो भाई दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए, यानी न्यूमेरिकल तो होने ही चाहिए, दे शुड बी न्यूमेरिकल, द डेटा शुड बी न्यूमेरिकल इन नेचर। न्यूमेरिकल में भी दो टाइप के होते हैं ना, मैंने समझाया आपको, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो डेटा न्यूमेरिकल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए।
कंटिन्यूस का मतलब विच कांट बी काउंट, जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, जिसको एक इंटरवल में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, सच काइंड ऑफ डेटा इज सेड टू बी कंटिन्यूस। ओके, तो ये कह रहा है डेटा कंटिन्यूस हो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिख रहा हो, ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सिमेट्री होती है लेफ्ट और राइट वाली। तो कल आपने पढ़ा वो स्क्यूनेस और कर्टोसिस। तो क्या होता है कि मैं बोलता था ना कि मेरे बचपन में मेरे को स्टैटिस्टिक्स में से तीन ही चीज आती थी, मीन मीडियन मोड, और मैं ये इसी में खुश होता था कि यही स्टैटिस्टिक्स है। वो तो जब हम डेटा साइज के पंगे में पड़े तो पता चला कि नहीं भाई, और ये स्क्यूनेस स्क्यूनेस तो अपने बस की बात ही नहीं थी उस समय। अभी तो ठीक है, ऐसा है कि समझाना है। सो स्क्यूनेस में यू स्टडीड लेफ्ट स्क्यूड एंड द राइट स्क्यूड, ये पढ़ा आपने, और वहां भी पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड पढ़ा। एक तो ये था, ठीक है, और एक ये था, ठीक है, ये राइट की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है और लेफ्ट की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है। ठीक है, मतलब वो टेल जा रही है ज्यादा, ये कहना चाह रहा हूं, ये द टेल बढ़ती चली जा रही है। ये क्या है, ये कैसा है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है, मतलब लेफ्ट स्क्यूड है, एंड ये राइट स्क्यूड है, और टेल इधर ज्यादा आ रही है, ये राइट स्क्यूड है और लेफ्ट स्क्यूड है। इसको मैं पॉजिटिव स्क्यूड, इसको नेगेटिव स्क्यूड बोलता हूँ, या लेफ्ट स्क्यूड बोलता हूँ, जो भी बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, और आपने कर्टोसिस भी पढ़ा था कल। तो कर्टोसिस का मतलब था फ्लैटनेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऊपर से कितना फ्लैट है, ये आपका कर्टोसिस बताता है। तो कर्टोसिस में भी तीन अच्छे खासे नाम थे, वो लिप्टोक्रिटिक, प्लेटोक्रिटिक, मीसोक्रिटिक। अच्छा, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे को नाम याद होंगे और मैं बोल दूंगा। ठीक है, फिर भी बोल दिए मैंने। तो एक में वो फ्लैट था ऊपर से, इसको तुम इसको बोल रहे थे तुम प्लेटिकुर्टिक, प्लेटिकुर्टिक बोल रहे थे कुछ। और एक था लिप्टोकुर्टिक, जिसमें शार्प था, देर वॉज अ शार्प टर्न फ्रॉम द टॉप। और एक था मीसोकुर्टिक, दैट इज सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन द यस्टरडे क्लास ओनली वी स्टडीड एंड हैव शेयर्ड द रिकॉर्डिंग्स आल्सो फॉर दैट, कर दिए मैंने आपको, पढ़िएगा। दोज पीपल हु आर नॉट प्रेजेंट दे कैन स्टडी द रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रीवियस क्लास। ओके, ये है। अब भाई वो कह रहा है कि आपको कोरिलेशन निकालना हो तो पहले डेटा तो न्यूमेरिकल होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल की तरह होना चाहिए। ओके, नॉर्मल नहीं है, स्क्यूड है, और तुम कोरिलेशन निकाल रहे हो, तो भाई कैसे पता चलेगा। मान लो वन ऑफ द फीचर इज बिहेविंग दिस, अनदर फीचर इज बिहेविंग दिस, और आप बोल रहे हो इन दोनों के बीच में सर रिलेशनशिप निकालो, कैसे चलेगा यार। वो कह रहा है कि नहीं, आप इनको ये देखो कि नॉर्मल हो तो आप कोरिलेशन निकाल लो दोनों के बीच में। अब आप बोलोगे सर नॉर्मल कहां से लाए, नहीं वो तो क्या कर लोगे, if the data is not normally distributed, you are having continuous features present in the data but they are not normally distributed, then what you can do. So there are certain transformations which you can apply over the data. तो आपका कोई भी डेटा का फीचर, ठीक है, डेटा का कोई भी फीचर, लेट अस सपोज x1 and x2, these are the two features present in the data. ओके, यदि ये न्यूमेरिकल हैं, कंटिन्यूस हैं, लेकिन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब आप बोलोगे सर कहां से पता करूं मैं कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। तो भाई क्या होता है, जब मैं डेटा विजुअलाइजेशन करता हूं ना, इन दैट पर्टिकुलर केस मैं डिस्ट प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, या हिस्ट प्लॉट, हिस्टोग्राम, ये बनाता हूं, इससे पता चलता मेरे को। ओके, इफ यू वांट मी टू शो, आई डिड अ कोड रिसेंटली, एक कोड बनाया था मैंने मैरिज प्रिडिक्शन वाला, कि मैरिज प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, लिंक्डइन पर भी शेयर करा। ठीक है, ये कोड है, मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट। मैं करता रहता हूँ ऐसे ही कुछ भी, केगल से डेटा लिया, मुझे लगता है कि यदि टाइटल यूनिक है तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने का मेरे को रहता है।
ठीक है, तो ये बनाया था मैरिज प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, होगा नहीं होगा, डेटा सेट है उसका। डेटा सेट में क्या क्या फीचर है? हाइट है, एज है, इनकम है, रोमांटिक जेस्चर है, कंपेटिबिलिटी स्कोर है, कम्युनिकेशन स्कोर है, डिस्टेंस इन किलोमीटर है, और रिस्पॉन्स में 0 या 1 है कि एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, और एज कैटेगरी है, यानी वो बंदा सीनियर है या मिडिल एज है या क्या है, वो बताया यहाँ पे। तो ये डेटा है, और मेरा टारगेट है रिस्पॉन्स, कि यदि ऐसा रिश्ता आएगा तो वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। उसमें ये चीजें कि सामने वाले की हाइट कितनी है, उसकी एज कितनी है, इनकम की, तो ये फीचर है जो देखे जाते हैं। ये तीन, हाइट, एज, ठीक है, देखी जाती है। सबसे बड़ी इनकम है जो देखी जाती है, सबसे ऊपर इनकम रख दो, मतलब शायद, मुझे तो पता नहीं। ठीक है, अपना तो मामला निपट चुका है अब। ठीक है, आप लोग जो भी समझे। ठीक, तो इनकम रखी, एज रखी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, रोमांटिक जस्चर, ठीक है, अब ये तो पता चलेगा भाई है कि नहीं है रोमांटिक, उसका स्कोर दे रखा है यहाँ, 0, 1, 2, 3। फिर कंपेटेबिलिटी, मतलब अपनी बनती है कि नहीं बनती है बातचीत में, व्यवहार में, कंपेटेबिलिटी। और बातचीत में तो ये हो गया कम्युनिकेशन, व्यवहार में कंपेटेबल, ये हो गया। एंड देन डिस्टेंस, कितना फार अवे है। ओके, तो ये कुछ फीचर यहां पर दिए थे। इसके अलावा देर आर अदर फीचर्स ऑल्सो जो कि रिक्वायर्ड है टू फाइंड द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो क्या हुआ, आई आई वर्कड ऑन दिस डेटा, इस पे काम करा मैंने। दिखा रहा हूं मैं आपको क्या क्या, जब आप किसी प्रॉब्लम पे काम करते हैं ऐसा, तो ये दिस इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यू हैव टू डू। ठीक है, एंड देन यू हैव टू डू सम विजुअलाइजेशन। ये देखिए कुछ विजुअल्स हैं जो बनाए हैं मैंने। ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया है एज का, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। ये देखिए, ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम इज बीन बिल्ड फॉर कंटिन्यूस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंटिन्यूस इन नेचर होते हैं उनका हिस्टोग्राम बनता है, उनका डिस्ट प्लॉट बनता है। ये डिस्ट प्लॉट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ये क्या क्या होता है इनको आगे बताऊंगा जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो मेरे डेटा में कंटिन्यूस कौन से थे, व्हाट फीचर्स आर कंटिन्यूस इन माय डेटा। देखिए, इन माय डेटा, हाइट इज कंटिन्यूस इन नेचर, एज इज कंटिन्यूस इन नेचर, इनकम इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन नेचर। ठीक है, इनको किसी क्लास इंटरवल में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये कंटिन्यूस है। रोमांटिक जस्चर, ये डिस्क्रीट वैल्यूज है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे ज्यादा क्या होगा, ये काउंटेबल है। कंपेटिबिलिटी स्कोर इज ऑल्सो काउंटेबल, ये भी डिस्क्रीट है। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो काउंटेबल, ये भी डिस्क्रीट है। हाँ, डिस्टेंस कंटिन्यूस है, डिस्टेंस को मुझे किसी इंटरवल में शो करना पड़ेगा, ये भी कंटिन्यूस है। तो ये इतने कंटिन्यूस हैं, तो इनका हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है, और आप देख सकते हो हिस्टोग्राम बनाया है मैंने, लेकिन ये देखिए, ये बनाया हिस्टोग्राम, ये हाइट का हिस्टोग्राम है, लेकिन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा। ये देखो, कहीं दिख रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? बाकी और उल्टे बन, इनकी जरूरत नहीं थी। ये कंपेटेबिलिटी स्कोर, इसका भी हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। कम्युनिकेशन स्कोर का भी हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये दोनों की जरूरत नहीं, इग्नोर करना है। और रोमांटिक जस्चर का भी मुझे हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। कभी भी डिस्क्रीट का, यदि डिस्क्रीट वैल्यू है उसका हिस्टोग्राम बनाओगे ना, तो ऐसा दिखेगा वो। दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये नॉट एट ऑल इंफॉर्मेटिव। ठीक है, ऑल राइट, तो ये नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक है, हिस्टोग्राम कंटिन्यूस का बनता है। ओके, आप देख रहे हो कि इनमें से किसी का भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। तो यदि मुझे रिले कोरिलेशन निकालना हो तो मुझे इनको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पहले। तो क्या करना पड़ता है टू कन्वर्ट इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? आई नीड टू टेक लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, लॉग। आई नीड टू टेक लॉग ऑफ अ फीचर, जैसे हाइट है, तो उसका लॉग करो आप। either you can do log, either you can calculate the square root। तो ये कोशिश करता है
आपका जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने का कोशिश करता है। ना हो कोई बात नहीं भैया, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, जितना हो जाए उतनी ठीक है। जबरदस्ती हम किसी के साथ नहीं कर सकते आजकल, सब अपनी मर्जी के मालिक है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, जो हो जाए मिल गया ठीक है, उससे कोरिलेशन निकाल दें। हालांकि ये काम मैंने नहीं करा, अपने कोड में नहीं करा, लेकिन मेरे को पॉइंट्स क्योंकि वो आया था तो मैंने एक्सप्लेन करा कि आप तो जरूर फॉलो अप करिएगा। आई कैलकुलेटेड, अब ये देखिए बॉक्स प्लॉट है, तो कल हमने पढ़ा ना क्वार्टाइल क्वांटाइल, ये बॉक्स प्लॉट ऐसे बनते हैं। ये भी न्यूमेरिकल फीचर्स के बनते हैं, खास करके कंटिन्यूस। ठीक है, तो देखिए यहाँ कोई आउटलायर नजर नहीं आ रहा होगा, आउटलायर इधर आता है इधर आता है, ये यहाँ कोई आउटलायर नहीं है। हियर ऑल्सो नो आउटलायर इज प्रेजेंट, हियर ऑल्सो नो आउटलायर इज प्रेजेंट, कहीं कोई आउटलायर है नहीं डेटा में, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो बाहर हो, ऑल पॉइंट्स आर कंसिडर्ड। ये बॉक्स प्लॉट है। ओके, ये बॉक्सन है, ये वॉलिन प्लॉट है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं। ओके, दीज आर द प्लॉट्स, ये फिर कंपेरेटिव प्लॉट्स हैं। ठीक है, ये रहा। नाउ हियर इज द कोरिलेशन मैट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा था ना, बिटवीन द फीचर्स। तो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स, अब देखो हाइट और एज के बीच में 0.0084 का रिलेशन है, यानी कितना कम है हाइट का, और एज से तो कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब है लीस्ट कोरिलेशन 0.0084, हाइट और एज के बीच में 0.0084 का कोई मतलब नहीं। हाइट और इनकम का भी कोई लेना देना नहीं, देखो 0.12, वो भी माइनस में, ये भी कम कोरिलेशन है। आप यदि ये पूरा देखोगे ना, तो किसी भी फीचर का किसी दूसरे फीचर के साथ कोरिलेशन बैठ ही नहीं रहा। इफ यू सी दिस कोरिलेशन मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एज हीट मैप। और हाँ, डायगोनल वाला 1 आएगा क्योंकि वो 1-to-1 कोरिलेशन है, इसलिए हाइट का हाइट के साथ बेटा 1 ही आएगा, एज का एज के साथ 1 ही आएगा, यानी एज एज से तो डायरेक्टली कोरिलेटेड होगी ना, बाकी नहीं आएंगे। ठीक है, ये एज का 0.0084 हाइट के साथ आ रहा है, क्योंकि यहां पर ऊपर है हाइट। ठीक है, ये हाइट है, ये एज है, ये इनकम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऊपर भी वही रो आते हैं, ऊपर भी वही चीजें आएंगी और नीचे भी यही चीजें आएंगी। ठीक है, अब देखो ये रोमांटिक जेस्चर -0.00088 हाइट से, तो कोई व्यक्ति रोमांटिक है या नहीं है उसका हाइट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है अंकना, यस सर। है ना। और ये किसी को भी एनी ऑफ द फीचर कैन बी कंसिडर्ड, रिलेशनशिप नहीं बैठ रहा, तो भाई मैं खुश हो गया। इस हीट मैप को देखने के बाद मैं खुश हो गया कि यार मेरे को तो कोई भी फीचर कोरिलेटेड मिल ही नहीं रहा, सब इंडिपेंडेंट है। और मैं चाहता था कि ऑल द फीचर्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो भाई मैंने आगे इन फीचर को उठा के मॉडल की ट्रेनिंग में रख दिया। मॉडल मतलब आई यूज क्लासिफिकेशन मॉडल्स ऑफ द मशीन लर्निंग, आई यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आई यूज रैंडम फॉरेस्ट एंड फ्यू एल्गोरिथम्स आई यूज फॉर द क्लासिफिकेशन। लफड़ा ये हुआ कि मेरे को एक्यूरेसी नहीं मिली, यानी कि फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन आई गॉट 4.488, रैंडम फॉरेस्ट से 52% की एक्यूरेसी मिली, और सपोर्ट वेक्टर मशीन में 0.48 मिली, यानी एक्यूरेसी मुझे 50% ही मिल रही है। यानी सीधी सी बात है, अभी भी डेटा कम है, अभी भी कुछ और फीचर्स की गुंजाइश है जो कि ये मदद कर सके कि रिश्ता मंजूर होगा या ना मंजूर होगा। अभी जितने फीचर हैं जो दे रखे हैं वो आपस में भी व्यवहार नहीं रख रहे, और वो टारगेट से भी रिलेटेड नहीं है। ये एक्यूरेसी कम आने का कारण क्यों है मालूम? बिकॉज दीज फीचर्स आर नॉट रिलेटेड विद द टारगेट, टारगेट से इनका अच्छा कोरिलेशन नहीं है, यानी जो रिस्पॉन्स था 0-1 उससे इनका कोरिलेशन अच्छा नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। तो यार लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो देखी जाती है सामान्यतः,
ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई डेटा इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा टारगेट से, तभी मेरे को स्कोर कम मिल रहे हैं। ठीक है, 48 एंड 50 एंड ये ऐसे ऐसे हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, प्रोजेक्ट था, को रिलेशन मुझे बताना था आपको, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया आपका कि इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। ये प्रोजेक्ट है, अवेलेबल है, शेयर भी कर चुका हूँ मैं। ओके, तो यू कैन चेक इट आउट ओवर द लिंक्डइन। ठीक है भाई, तो ये बात खत्म हुई। तो पियर्सन वियर्सन की तो चलो हो गई। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन इज नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू। नॉर्मलाइजेशन वी डिड स्टडीड इन द प्रीवियस segment of linear algebra, and there I told that you have to normalize the data. You want to convert data in a similar scale, and this is one of the important pre-processing step। बहुत ही IMP स्टेप है ये, प्री प्रोसेसिंग की। नॉर्मलाइजेशन यानी डेटा को सिमिलर स्केल में कन्वर्ट करो। क्यों बोला था मैंने नॉर्मलाइजेशन? आपसे बात हुई थी ना कि इन योर डेटा यू आर हैविंग डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, यू आर हैविंग डिफरेंट फीचर्स present in the data। okay, and these features are having different units। कोई वेट हो सकता है, कोई हाइट हो सकती है, कोई एज हो सकती है, कोई इनकम हो सकती है, अलग अलग फीचर है, अलग अलग इनकी वैल्यू होगी। अब किसी की वैल्यू ज्यादा होगी, किसी की वैल्यू कम होगी। जैसे हाइट तो 5.5 तक जाएगी, 5.6 तक जाएगी। वेट 100 किलो हो सकता है। ठीक है, इनकम इनकम जो है वो 50-60 थाउजेंड हो सकती है। So I am having different features present in the data, and I am having different values present in them. In a corresponding feature, I am having less values, and some features I am having more values। मतलब बड़ी वैल्यू, और जो ज्यादा बड़ी वैल्यू रहती है उनका वेरियंस हाई होता है, मैं समझा चुका हूँ। और जिनका वेरियंस हाई, जिन फीचर का वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं मॉडल डेवलपमेंट में, और बाकियों को निपटा देंगे ये। वो आपको मैंने बताया था ना, वो गरीब है और अमीर है। ठीक है, याद आ गया होगा। दो फीचर्स जिनका वेरियंस कम, जिनकी वैल्यू कम, उनको हम पुअर की कैटेगरी में रखते हैं। And those who are having high values, which are having high variance, they are rich, so they will dominate। तो मैं डोमिनेंस को खत्म करने के लिए तो नॉर्मलाइजेशन करना था मेरे को। नॉर्मलाइज करो, सबको सबको बराबरी पे लेकर आओ। ठीक है, सो दिस कैन बी डन बाय एजुकेशन। बाकी कोई नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। एम आई राइट और नॉट, अक्षिता? इज शी देयर? Yes, sir. Okay, so education can bring this change। Education Yes, can sir. bring any kind of change in the society। Okay, तो भाई ये नॉर्मलाइजेशन इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू सिमिलर स्केल। So normalization is a pre-processing technique used in machine learning to scale and transform data to a common range। तो या तो मैं उनको -1 से +1 के बीच में ले आऊं, या तो मैं उनको 0 से 1 के बीच में ले आऊं, कुछ भी करूं मैं उनको लेकर आऊंगा, फिर बाद में जाके उसको यूज करूंगा। ओके, अब देर आर डिफरेंट स्केल्स टू परफॉर्म द नॉर्मलाइजेशन। ओके, दैट मीन्स फीचर्स इन अ डेटा सेट में हैव अ डिफरेंट स्केल। अभी तो बता रहा था ना, ये तो बोला मैंने कि कुछ छोटे वैल्यूज हैं, कुछ बड़ा वैल्यूज। तो नॉर्मलाइजेशन विल ब्रिंग ऑल द फीचर्स इन अ सिमिलर स्केल, प्रिवेंटिंग फीचर्स विद लार्जर मैग्नीट्यूड फ्रॉम डोमिनेटिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा, वो अपनी दम दिखाएंगे, वो बोलेंगे कि अरे तुम तो छोटे मोटे, तुम्हारा कोई लेना वो नहीं। ठीक है, उनको उसी को कम करना है मेरे को। ठीक, और ये जो पॉइंट लिखा है ना ग्रेडेंट डिसेंट वाला, ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इट्स एन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस विच इज यूज्ड इन डीप लर्निंग स्पेशली, अभी आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। एंड फिर क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन को ही ना वो रेगुलराइजेशन या पेनलाइजेशन भी कहते हैं। अदल बदल के कभी नाम लेते हैं, रेगुलराइजेशन या पेनलाइजेशन। सो रेगुलराइजेशन मीन्स L1 एंड L2 टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग इन अ मशीन लर्निंग मॉडल। ये टेक्निक है L1 L2, और ये भी मैंने पढ़ाई है L1 L2, जिसको मैं आगे और बड़े लेवल पे पढ़ाऊंगा व्हेन आई विल बी टीचिंग द एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लीनियर रिग्रेशन के बाद पढ़ाऊंगा। L1
means less so. L2 means ridge, less so in ridge regression. ओके, सो ये जो रेगुलराइजेशन है ना, ये पेनल्टी है। और पेनल्टी किसको देता हूं मैं? पेनल्टी किसको देता हूं? जब मेरा मॉडल ओवरफिटेड होता है, तो आई एम गोइंग टू इंड्यूस पेनल्टी टू इट। ये अभी आपको शायद थोड़ा सा टफ लगे समझने में। ये जब मेरी एल्गोरिदम स्टार्ट होगी ना, देन आई कैन मेक इट मच मोर क्लियर। ठीक है, तो व्हेन माय मॉडल इज गोइंग टू बी ओवरफिटेड, ओवरफिटेड मींस ट्रेनिंग पर अच्छा एक्यूरेसी, टेस्टिंग पर फेल हो गया। ओके, ये होती है ओवरफिटिंग। तो when my model is going to give the good results during training and during testing it fails, that's called as an overfitted model. तो रेगुलराइजेशन करना पड़ता है, उस पर पेनल्टी लगाना पड़ती है मॉडल पे। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन इट इज यूज इन डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स। एक चीज जो ध्यान रखिएगा, ये जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस है या ये नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज स्पेशली यूज्ड इन डिस्टेंस बेस्ड अल्गोरिदम्स, यानी जहां डेटा पॉइंटों की दूरी को कंसिडर किया जाता हो, ऐसी एल्गोरिदम में नॉर्मलाइजेशन होता है। हर एक एल्गोरिदम में नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाओगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं इस बात को, फिर रिपीट कर रहा हूं। इसी चीज की एक्सपर्टीज आनी चाहिए मेरे को। डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स पे यू हैव टू अप्लाई नॉर्मलाइजेशन और रेगुलराइजेशन। डोंट अप्लाई दिस थिंग इनटू नॉन डिस्टेंस बेस्ड। जैसे कि डिसीजन ट्री में नॉर्मलाइजेशन यूज नहीं होता, रैंडम फॉरेस्ट में भी नहीं होगा, बूस्टिंग एल्गोरिथम उनमें भी नहीं होगा, सपोर्ट वेक्टर मशीन में होगा। एसटीएम इज अ डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम। और यहां नीचे भी लिखा के नियरेस्ट नेबर, के एन एन, के नियरेस्ट नेबर, जहां पर डेटा पॉइंट्स के बीच की दूरी देखी जाती है, तो यहां पर भी यूज होगा। तो जो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है, वहां पर मुझे डेटा को स्केल करना पड़ता है, ऐसे हर किसी के लिए नहीं करना पड़ता स्केल। ठीक है, सो नॉर्मलाइजिंग द फीचर इंश्योर द डिस्टेंस कैलकुलेशंस आर नॉट बायस्ड बाय द स्केल्स, enables फेयर कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, तो जो बाइसिंग हो रही थी ना, एक ज्यादा बड़ा और एक कम, नॉर्मलाइजेशन करने से मैंने सारी बाइसिंग खत्म कर दी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, स्टार डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम वो क्या होती है, मैं जब आगे पढ़ाऊंगा सब बताऊंगा। तो वहां पर ही नॉर्मलाइजेशन लगता है। ठीक है, ऑल राइट। तो नॉर्मलाइजेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मॉडल। ठीक है, ये है, ऑल राइट। सो नॉट ऑल द मशीन लर्निंग, ये कह दिया ना इसने यहाँ पर आखिरी में, ये देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, not all the machine learning algorithm require normalization, only some algorithms require normalization, okay, such as svm, knn, etc. But decision tree, random forest, they are not affected by the scale of feature। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई फीचर बड़ा हो कोई फीचर छोटा हो, ये तो सबको सॉल्व कर देंगे। जो मैं कह रहा था वो क्लियर हो गई बात है। ठीक है, सो बहुत बेनिफिशियल स्टेप है ये, नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं अपन। ठीक है, तो देर आर वेरियस नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स, जैसे कि एक होती है मिन मैक्स स्केलिंग। ये टेक्निक है मिन मैक्स स्केलिंग, ये डेटा को 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर देती है। दैट इज मिन मैक्स स्केलर। तो मेरी जो बेस लाइब्रेरी है ना, एसके लर्न, आप यदि जानते होगे तो, नहीं मैं आगे इसको भी पढ़ाना पड़ेगा, इतना है, वास्ट है ये। आप लोग तो 4 4 साल की इंजीनियरिंग करते हो डेटा साइंस में, ठीक है, और उसके बावजूद भी 0 बाय 0 हो जाता है हिसाब किताब, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आ रहा। ठीक, बहुत कुछ होती है चीजें पढ़ाने की। फाइन, सो फिर भी मेरे एंड से जितना ज्यादा से ज्यादा को उतना समझाऊंगा, कोई इशू नहीं। तो जो मिन मैक्स स्केलर है, इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन माई एसकेलन प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी, वहां से मैं इंपोर्ट कर लूंगा मिन मैक्स स्केलर को,
और जो भी डेटा मैं इसके अंदर दूंगा वो उसको 0 से 1 में कन्वर्ट कर देगा, 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज मिन मैक्स स्केलर। एक होता स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि आपका जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस, ट्रांसफॉर्मिंग द फीचर्स टू हैव जीरो मीन एंड द यूनिट वेरिएंस। इस तरीके से वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है कि उसका मीन 0 हो जाए और वेरिएंस 1 हो जाए। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है वो। ठीक है। एक होता है, और भी है, रोबोस्ट स्केलर। वो यदि आगे दिया होगा तो बताऊंगा। ठीक है, रोबोस्ट स्केलिंग। चलो ठीक है, ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। यदि आपके डेटा में आउटलायर है या फॉल्टी एंट्री है, तो ऐसे में रोबोस्ट स्केलर का अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है। तो भाई ये सब नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक है। नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू हैंडल डिफरेंट फीचर स्केल, इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस। ये काम करता है। ठीक। तो जैसे मैंने कहा मिन मैक्स स्केलर, तो ये 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर देगा। ये रहा इसका फॉर्मूला मिन मैक्स का, x माइनस मिनिमम ऑफ x डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मिन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिन मैक्स स्केलर। फिर नेक्स्ट है आपका z स्कोर या स्टैंडर्ड स्केलर का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड स्केलर का फॉर्मूला। ठीक है, ये भी बता चुका हूं पहले। ठीक है, ये डेटा को जीरो मीन और यूनिट वेरिएंस में कन्वर्ट करता है। ठीक है। एक डेसिमल स्केलिंग भी होती है, यानी कि डेटा को या पॉइंट वैल्यू को 10 की पावर की किसी वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो एक ये भी होता है। ओके। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। ओके, एंड आई टोल्ड अबाउट द लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या, वो डेटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड एज लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आई टोल्ड वेयर द लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, वेयर द log transformation is required. Okay, so log transformation is to transform into normal distribution डेटा को। यदि नहीं है तो करो, उसके बाद फिर आप कोरिलेशन चेक करो एंड अदर थिंग्स यू यू कैन चेक इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करो, तो लॉग लेना पड़ता है। स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये भी कर सकते हो आप। फाइन। और भी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, यूनिट वेक्टर नॉर्मलाइजेशन, जो ये इट्स नॉट बीन इंपॉर्टेंट सो मच। ठीक है, मेरे लिए जो खास इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो होते हैं मिन मैक्स है, स्टैंडर्ड स्केलर है। ओके, एंड दिस थिंग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लेना पड़ता है यदि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, वहां पर लेना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ कैसे लेना पड़ेगा, किस सिचुएशन में लेना पड़ेगा, दैट आई विल टेल इन द प्रोजेक्ट्स केस। ओके, वहां पर मैं बता पाऊंगा। यहाँ बस अभी एक इंफॉर्मेशन है कि दीज आर द सर्टेन काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच आर अवेलेबल। ओके, ये चीजें होती हैं। फॉर्मूले सारे ये रहा रोबोट स्केलर, दिस इज द रोबोस्ट स्केलर। ओके, तो यदि आपके डेटा में आउटलायर है, इफ योर डेटा इज हैविंग आउटलायर्स और द फॉल्टी एंट्रीज, वहां पर अपन रोबोस्ट स्केलर का यूज करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रोबोस्ट स्केलर, x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय IQR, इंटरक्वार्टाइल रेंज। इन द यस्टरडे क्लास ओनली वी स्टडीड IQR। ओके, इंटरक्वार्टाइल रेंज यानी Q3 माइनस Q1, दिस इज IQR। सो जो फॉर्मूला है रोबोस्ट स्केलर का, डेटा पॉइंट या उस वैल्यू में से मीडियन की वैल्यू को माइनस करो और IQR से डिवाइड करो, तो जाके जो आएगा रिजल्ट दैट इज रोबोस्ट स्केलर। ठीक है, सो रोबोस्ट स्केलर इज इफेक्टिव when the data contains outlier and when it is not normally distributed। यदि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, वो स्क्यूड है, उस केस में आप रोबोस्ट स्केलिंग कर सकते हैं डेटा के ऊपर। तो भाई इतनी बातें ध्यान रखनी है, इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब यहाँ क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड स्केलर एंड रोबोट स्केलर आर यूजुअली यूज्ड इन द नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो खास करके एस ने कहा कि स्टैंडर्ड स्केलर तो अपन यूज करते ही हैं यदि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और यदि डेटा स्क्यूड हो और उसमें आउटलायर हो तो अपन रोबोस्ट स्केलर का इस्तेमाल करते हैं फॉर द स्केलिंग पर्पस। ये नोट्स में आपको मेंशन किया गया है। ऑलराइट, तो एक ही चीज हमें समझ में आई है यहाँ पर, इफ यू आर डीलिंग विद डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स, उनसे डील करो तो ही जाके नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग करनी है, वरना स्केलिंग नहीं करनी है।
और स्केलिंग के भी इतने टाइप की होती है स्केलिंग, और ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा. यू नीड टू चेक वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज नॉर्मल और नॉट. यदि नॉर्मल है तो स्टैंडर्ड स्केलर लगाओ, और यदि नॉर्मल नहीं है तो रोबस्ट स्केलर लगाओ. या आप एक काम भी कर सकते हो, यदि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, देन यू कैन अप्लाई लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ओवर इट टू कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल. ये भी कर सकते हो आप. या आप उसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हो. दीज ऑल थिंग्स यू कैन डू ओवर द डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फॉर्मेट. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये सारी स्केलिंग टेक्निक है, नोट्स के अंदर लिखी है, जो मैं समझा चुका हूँ, सारी बातें यहाँ पर मेंशन है. ओके, इन केस ऑफ नॉर्मलाइजेशन. ओके, एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. आपको स्क्रीन दिख रहा था ना जो यहाँ पर? Yes, sir. दिस इज द स्क्रीन ना? हाँ, फाइन. एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. Sir, how can we like memorize all these techniques of मेमोराइज नहीं, normalization? इट्स बीन लर्न बाय प्रैक्टिकल. Yes, sir. Like sir, for now, I just I can only recall the Z score and min max, then the log log thing. So square root as well. So these four things I can recall right now. Okay, so the point is, when you are going to take some data, apply techniques over it, then only you can see how the results are coming, what to be applied when. At this Yes. particular moment, अभी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है. Yes. All right, you can go through the recording, you can go through the notes. Okay, but the important is practical. You know, the kind of project which I've shared with you. This is the project ना I made. So, तो जब तक प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक किसी डेटा पे काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं पता चलेगा. Yes, sir. All right, so this such kind of projects we will do, and you will understand then कि कौन सा लगाना नहीं लगाना. सो Surely, sir. हियर जो है यहाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर एंड सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, these two algorithms, logistic and random forest, they don't require स्केलिंग. इनको नहीं चाहिए स्केलिंग. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को अप्लाई करते वक्त, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करते वक्त स्केल नहीं करा डेटा को. बट अब आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, दिस इज स्टैंडर्ड स्केलर. तो जब मैं ये स्टैंडर्ड स्केलर यू कैन डायरेक्टली इंपोर्ट फ्रॉम द एसकेलन प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी. ओके, you can import this thing and you can give the features which you want to scale. तो कंटिन्यूस जो फीचर है उनको दे दो. यहाँ पर मैंने ये दूसरे भी दे दिए हैं, नो वरीज. मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा था इस डेटा पर, मुझे स्कोर तो अच्छा मिले, बट यहाँ मिला नहीं. ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स विच यू कैन गिव टू द स्टैंडर्ड स्केलर. ये देखिए, स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर मैंने इन फीचर्स को दिया. उसके बाद मैंने सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज़ करा, क्लासीफायर का. लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट, इन बोथ द एल्गोरिथम्स आई डोंट रिक्वायर द स्केलिंग टेक्निक. ठीक है, बट सपोर्ट वेक्टर मशीन के लिए रिक्वायर्ड था, तो मैंने स्टैंडर्ड स्केलर लिया, ये मानते हुए कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है. लेकिन आप ये जानते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं था. यानी मुझे इस काम को करने के पहले इनको नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहिए था. यानी मुझे एज का, हाइट का, इनकम का लॉग लेना चाहिए था, फिर इसको फिर स्केल करना चाहिए था, और फिर इसमें देना चाहिए था एसवीएम. यही डेटा साइंस है. द पर्सन हु नोज ऑल दीज स्टेप्स, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ साइंटिस्ट. कि कब क्या करना है डेटा के ऊपर. द वन हु अंडरस्टैंड द डेटा इज द साइंटिस्ट. तो मुझे डेटा समझ में आ रहा है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है, मुझे ये सब समझ में, सारी टेक्निक्स मेरी पड़ी हुई है, देन ओनली आई कैन अप्लाई. ओके, फाइन. तो यहाँ मैंने कर तो दिया, डायरेक्टली स्केल करा, लेकिन मुझे क्योंकि ये सब नॉर्मली नहीं थे और इनमें आउटलायर भी नहीं है, तो मैं रोबस भी नहीं लगा सकता. आउटलायर भी नहीं था उसमें. और रोबस किस लिए था? कि डेटा में आउटलायर हो और नॉर्मल ना हो तो लगा दो. इसमें आउटलायर है नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, तो इनको लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, फिर भले ही इसका स्केल करो और फिर मॉडल के अंदर दो ट्रेन होने के लिए, तो जाके हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. फाइन, सो दैट इज द केस.
फाइन, सो नो वरीज, आपको सीखना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स, यू कैन गो थ्रू द नोट्स, ओके, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस सम कोड्स, ठीक है, Yes. यू कैन डू सम प्रोजेक्ट्स विद मी, सो इट विल बी ईजियर देन, ओके, मैं आपको कनेक्ट करूंगा इन सब चीज़ों के लिए। खैर, एनीवेज, एनी अदर डाउट प्लीज लेट मी नो। Okay, so this makes a sense, and